Mr. Deepak, your designation is blockchain engineer. What is block in blockchain technology? Deepak, now what are your views on cryptocurrency and bitcoins? लेकिन सती मेलों के ऊपर तो राजस्थान में रोक लगा दी गई थी 1988 में ही। आपको पता ही होगा कि सीकर के देवलाला में ही अंतिम सती हुई थी रूप कंवर। उसके बाद फिर भी यहाँ पर मेला आयोजित होता है, क्यों? Welcome, sir. Please, Deepak. Good morning, sir. Good morning, sir. Please sit down, Deepak. Thank you, sir. Deepak, please tell me something about yourself. Sir, as you told, myself Deepak. Sir, I am from Junjunu. I have completed my schooling from Birla High School, Pilani, and I have done my BTech from IIT Kanpur. And I am currently working as a lead engineer in Wipro. My hobbies include cricket and volleyball. So your medium of interview would be English or Hindi? I am comfortable in both. You're comfortable in both. Now, Deepak, you are coming from an engineering background, that too from a very prestigious college, that is IIT Kanpur. Now, graduating from an prestigious college, working at such a high pay scale, why do you want to degrade yourself and work in the state government, that too at a very low salary? Is it the monetary incentive that you are looking for, or is it just the prestige of the job? What are you looking for? Sir, the reason behind it, sir, when I came to home during Corona, when I got the opportunity to work from home, so at that time I found that the civil servants are selflessly working for the society, how they are making great impact with their decisions, and they have social prestige also. So all these things inspired me, therefore I started preparing for this exam. That means it is the prestige and the quench for this community service that has inspired you. So this job provide me job also, and along with job I can contribute to society also. But what about the monetary incentive? I'm sure that from quite a long time you've been working at a very high scale, pay grade, and you might have molded your lifestyle accordingly. How would you adjust with a very basic pay scale, that too working in a government department, coming out from a very prestigious college that is IIT Kanpur, ranking to be one of the best colleges in India? How do you see this? So regarding the salary, what I found in me that I'm not that materialistic kind of person. Means whatever money I'm using means whatever money I will get from this job, it is enough for me, I think, to survive in this society. I have to fulfill my basic needs. And Deepak, now what is this blockchain technology that you have been working for? What is the technology all about? So blockchain means decentralized database. So traditionally we have centralized database, but in blockchain what it provides, there is distributed ledger, they say. So it is present across all the nodes in a network. Nodes mean computers, whatever participate in the network. And here what happens, whatever transaction we do, it is stored in a block, and that block is encrypted using cryptographic hash. And these blocks are linked to each other based on this hash. So if someone try to change the transaction or manipulate it, then this chain will break. So that's why it provide that transparency, immutability, and securized from unauthorized attack also. I believe that it has a wide scope future. I would say that this particular technology, or maybe your lead role, would become very handy in terms of transforming the technological landscape in India. How do you see this? Why do you want to switch from this particular job still? Because this is something that you can contribute largely, not only the organization, but also as that knowledge that you are having can be contributed at the national level. Why you want to work as a state administrator? Yes, it is right that there is wide scope, there is huge scope for this technology in future also, and Government of India is also working on it. That NPCI is working on e-Rupee project, and they are using this blockchain technology behind it. So I can use these my IT skills in governance also, as governance is changing from traditional governance to e-governance, so I can use my skills here also. Thank you, Deepak. Mr. Deepak, your designation is blockchain engineer. What is block in blockchain technology? So block means it consists of set of transactions. So suppose I have sent money, A sent money to B. So this is called transaction in blockchain.
So this whenever this transaction happens, some hash is generated, and that hash is stored in a block. So after a certain number of transactions, block will form, and that block is committed into means network. What will the role of blockchain technology in Web3 communication technology? Blockchain is part of Web3 only. Web3 means decentralized space. आप IIT कानपुर से हैं, IIT कानपुर का हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में कोई एप्लीकेशन है इसका? IIT कानपुर का तो सर अभी मैं ध्यान नहीं आ रहा। IIT मद्रास का भी आविष्कार हाइपरलूप, जो जयपुर से दिल्ली। जुगनू सैटेलाइट that is launched by that is developed by IIT Kanpur. So what is the object of Jugnu satellite? I will read about it. Chemical engineering. What is the chemical engineering? Sir, chemical engineering means application of chemistry in order to create products. Like example, fermentation process in order to create the alcohol, fractional distillation process in order to refine the crude oil. What is the difference between fermentation and distillation? In distillation, it is mainly for differentiating the components of a mixture on the basis of their boiling point. And fermentation, sir, I am not sure about fermentation. I am not able to recall. What are alloys? Alloys are a homogeneous mixture of metals. Metals or non-metals? Metals and as well as metals and non-metals. Non-metals भी हो सकते हैं. Not sure. Any example of alloys? Brass and bronze, solder. Sir. दीपक जी, आप झुंझुनू से हैं और आपने बताया कि कोविड के दौरान आपको अपने क्षेत्र में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उसी समय आपने निर्णय लिया कि प्रशासनिक सेवा में आप जाएंगे। आपको अपने क्षेत्र में क्या बुनियादी समस्याएं नज़र आती हैं और उनका निवारण आप किस प्रकार कर सकते हैं? मतलब झुंझुनू क्षेत्र में सर अभी जो मेरे को एक अभी मतलब रहने के बाद जो मुझे समस्या नज़र आई, वो एक तो सर अभी ड्रग एडिक्शन को लेकर थोड़ा ज़्यादा मतलब यूथ में अभी देखने को मिल रहा है। दूसरा सर अभी जो ये IPL के चलते हुए सर जो गैम्बलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है सर। इसके कारण सर फाइनेंशियल इम्पैक्ट फैमिलीज़ पे। और तो किस प्रकार दूर कर सकते हैं आप इसको? सर गैम्बलिंग को लेकर ये सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये इलीगल है सर। इसके प्रशासन ने मतलब मान्यता नहीं दी हुई है? सर प्रशासन अपने स्तर पर ट्राई करता है सर, लेकिन समाज में सर इसको मतलब जैसे ड्रीम 11 वगैरह ये सब कुछ इलीगल है? ड्रीम 11 सर इसको एज ए स्किल ऐप हाई कोर्ट में सर इसको डिक्लेयर किया गया है। इसको एज ए गैम्बलिंग नहीं माना जाता है। लेकिन सर एक टाइप से ये भी सर जो बच्चे हैं सर उन पर ये गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। अच्छा जी। और दूसरा नशे की बात आपने की, उसका निवारण किस प्रकार से हो सकता है? सर नशे को लेकर सर ये कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए और लाइक दैट मतलब लोकल लेवल पे सर कंपटीशंस को इनकरेज करना चाहिए। जैसे मेले वगैरह में सर स्पोर्ट्स को अभी डिक्रीज़ हो रहा है सर, मेलों में लोग इतना पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। आपके क्षेत्र के कोई प्रसिद्ध मेले आप बता सकते हैं? सर रामदेव जी का मेला नवलगढ़ में, उसका गनगौर मेला बड़ा गाँव में, और रानी सती जी का मेला लगता है। लेकिन सती मेलों के ऊपर तो राजस्थान में रोक लगा दी गई थी 1988 में ही। आपको पता ही होगा कि सीकर के देवलाला में ही अंतिम सती हुई थी रूप कंवर। उसके बाद फिर भी यहाँ पर मेला आयोजित होता है, क्यों? सर इसमें हाईकोर्ट का फैसला ये था कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना हो कि वो सती को प्रमोट करे, तो इस पे बैन है। चलिए दीपक जी, शेखावाटी क्षेत्र में टूरिज्म की आपको क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? सर शेखावाटी क्षेत्र में सर अभी झुंझुनू में स्पेसिफिक जी जो लुहागर जी है उसके लिए अभी पंचगौरव योजना के तहत उसको विकास किया जा रहा है। लुहागर जी उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जा सकता है खाटू श्याम जी की तरह। शेखावाटी पूरा रीजन मैं पूछ रहा हूँ। अब शेखावाटी पूरे रीजन में सर रिलीजियस साइट्स हैं काफ़ी। दूसरा सर टेम्पल्स भी हैं जैसे लुहागर जी, रानी सती। तीसरा सर जो मूरल पेंटिंग्स हवेली में उनको भी और प्रमोट किया जा सकता है। चौथा सर, लेकिन हम देखते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में जो हवेलियां हैं उनको तो संरक्षण की आवश्यकता है शायद, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं दिन प्रतिदिन डिमोलिश उनको किया जा रहा है, मार्केट वहां पर खड़े किए जा रहे हैं। उनका किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है? ये जो पेंटिंग है इनके भीतर फ्रेस्को पेंटिंग, इसको किस प्रकार बचाया जा सकता है? सर मुझे लगता है सर कि इसमें सर स्कूल के जो बच्चे हैं उनको सर उस लेवल पर सर टूरिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर उनको विजिट करवाना चाहिए कि ऐसा भी राजस्थान में है, हुआ है, ऐसा भी है,
तो इन चलिए, राजस्थान में आप महिलाओं को राजनीति में कहाँ तक देखते हैं? महिलाओं में सर राजस्थान में पंचायत में अभी 50% रिजर्वेशन है महिलाओं को, लेकिन सरपंच पति का अभी भी सर इशू है काफ़ी। लेकिन कुछ महिलाओं ने आगे बढ़कर इसमें मतलब रिप्रेजेंट किया खुद, जैसे लांबी अहीर से नीरू यादव जी जो सरपंच आती है, यूएन में भी अभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। दूसरा सर अभी जो रिसेंट विधानसभा है सर, उसमें 21 वुमेन्स हैं, मतलब धीरे धीरे सर इंक्रीज हो रहा है पार्टिसिपेशन। राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन क्या था, क्यों किया गया है आयोजित? पार्डन सर, राइजिंग राजस्थान समिट सर, इसके सर पीछे मेन रीजन सर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था राजस्थान में सर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो कि अपनी जो अभी इकोनॉमी है सर वो $185 बिलियन है, उसको इंक्रीज करना $350 बिलियन तक 2030। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आज आपका सिलेक्शन नहीं किया जाए, इसके पीछे कोई भी एक कारण मुझे आप बता दीजिए कि आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं चुना जाए। सर अब तक मैंने सिलेक्ट होने के लिए प्रिपरेशन की है सर, इसका सोचने को। ठीक है सर। Deepak, now what are your views on cryptocurrency and bitcoins? Sir, it has currently it has some means more negative aspect as compared to positive aspect, because it is completely unregulated. And second sir, as it is as there is we can't know the sender address, so it can be used to do some illegal transactions like money laundering or terrorist financing. And third sir, it is highly volatile, so investment some investment in can lead to some financial risk also. So what is the present legal status in India as far as the investment opportunities are concerned? In India sir, it is not a legal tender, it is not a fiat currency, but it can be traded, and government has imposed tax of around 30% on transactions. So what is this crypto tax regime then? I'm not sure about crypto tax regime, but in recent budget they have imposed tax of 30% on crypto transactions. 30% of what? Whatever profit we earn on crypto, maybe. With 1% TDS? Not sure. Not sure? Okay. Deepak, now what are the major problems that you see in Rajasthan when it comes to, like say for example, coming from a very diverse background, you yourself is an IIT engineer. Now, what are the major problems that you see you would like to work in an area like Rajasthan based upon your expert, diverse background that you are coming from? Please. If we talk about Rajasthan, main problem is desertification in Rajasthan, that is continuously increasing. Desertification? Yes. What is that? See, march of desert means it is means biological productivity of land is continuously decreasing. Second, sir, the lack of robust transport connectivity in especially northwest Rajasthan. Third, sir, lack of water resources, due to which the groundwater is exploited at very high level, and there are around 203 dark zones also in Rajasthan. Fourth, sir, there are some social issues also, which are day by day increasing also, like child marriage, dowry. So how would you rectify the social issues that is prevalent in Rajasthan, particularly with regard to child marriages, women empowerment, all those things? Sir, what I think means we need to take these religious leaders into the confidence, because religious leaders or local leaders at panchayat level. So whenever these type of things happen, means they should create awareness in society regarding impact of this type of incident. Second, sir, we should increase enrollment ratio of the girls. We should promote education among girls. And third, sir, means whenever this type of incident happen, strict action should be taken by administration also. That means penal laws are not sufficient? Are you hinting towards that? Or maybe the administration is not working properly in the bona fide interest of the people? Sir, administration is working, but still they are increasing day by day, because in case of dowry, there is no difference between this forceful gift and second or voluntary gift. So that provision is misused by the people. And in case of child marriage, the main issues are
ये बड़े का छोटे के साथ शादी करवा देना, आटा साटा मैरिज, सो दीज थिंग्स वी नीड टू These are also part of your cultural practices happening in Rajasthan most commonly these days. How would you provide a valuable solution to that? So these are part of custom. In historically, they were means these things were happened because of some invasions. There are some that reasons behind these things, early marriage, etc. But in current society, it is not viable because they have negative impact, health wise also, economic wise also. Thank you, Deepak. It was nice interaction with you. It was amazing interaction. Thank you so much. Your interview is over. You may go now. Thank you, sir. Thank you, sir. आइए बैठिए। दीपक जी कैसा रहा इंटरव्यू आपका? हाँ सर, अच्छा लगा। मतलब अच्छा लगा? बहुत नर्वस हैं क्या? नहीं सर, नहीं नर्वस नहीं है। दीपक आपसे इंटरव्यू में जब सवाल पूछा जाएगा तो ज़्यादातर आपके बैकग्राउंड के बारे में और आपके इंजीनियरिंग कोर एरियाज़ के बारे में पूछा जाएगा। आप उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? हाँ सर, केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक पढ़ा है। केमिकल नहीं, जो आपकी करंट वर्क प्रोफाइल है अभी। हाँ, करंट वर्क प्रोफाइल का तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2018 से काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो टैक्स करेंसीज, ये सब रेजीम्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अफेक्ट करेगी। ऑल्दो वी ट्राई टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दैट, बट इंटरव्यू में क्योंकि अब इतने बड़े नौकरी को छोड़ करके सच अ हाई लेवल पेइंग जॉब एंड कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, उस कॉलेज से निकलने के बाद एंड यू आर वर्किंग इन सच अ लो पे ग्रेड, बहुत ही कम तनख्वाह मिलेगी आपको। हाँ सर। तो सवाल उसके बेसिस पर पूछा जाएगा। हो सकता है सवाल आपके फिर इंटीग्रिटी के ऊपर चला जाए, ऑफिस ऑफ करप्शन को लेकर के हो, खास करके इन सब चीज़ों को लेकर के आपसे सवाल को पूछा जाए। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो हमने इसके बारे में पूछा और आपने बहुत ही बैलेंस उत्तर दिया। साथ में क्योंकि आप इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, खास करके ओवरऑल आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, तो उनकी उम्मीदें भी बहुत बढ़ेगी फिर इंटरव्यू में। वो आपको एज अ इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा सवाल पूछने और बहुत ज़्यादा उत्तर, और एक ऐसा उत्तर आपसे उम्मीद करेंगे कि जिसका समाधान त्वरित आपको दिया जाए। तो हमने सामाजिक मुद्दों पे आपसे सवाल पूछे, खास करके आपके बुनियादी जो आपकी स्ट्रीम रही उनसे सवाल पूछे, ब्लॉकचेन से सवाल पूछे। बहुत ही कार्व आउट करके हमने सवालों को स्ट्रक्चरली फ्रेम किया था आपके लिए। मानना यह है मोर और लेस आप एक अच्छे कैंडिडेट, ठीक है, और बस आपके सिलेक्शन के बीच में और सब चीज़ों के बीच में आप ही हैं। आप नर्वस अगर हो गए तो फिर थोड़े से वहाँ पर उत्तर नहीं, वो फेस पे वो लगता है कि वो शेखावटी साइड में कि गुस्सा टाइप लगता ही है वो फेस पे, एक टाइप से वो स्माइल आती नहीं है। नहीं तो स्माइल नहीं, जैसे कि अभी सर के साथ एक प्रश्न बोला, सर मैं आई विल रीड, इंस्टेड ऑफ ब्लंटली सेइंग दिस आई विल रीड अबाउट इट। मैं पढ़ूंगा सर, मैं ज़रूर, सॉरी सर, इसके बारे में मैं विचार करूँगा। बिकॉज देखो वहाँ पर क्या है ना कि सिविल सर्वेंट्स बैठेंगे, पुराने यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर प्रोफेसर्स बैठेंगे, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा ईगो होता है। ऑल्दो वो तुमको बहुत ही कंफर्टेबल करेंगे, बोर्ड में आप आएंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल करके आपको बैठाएंगे, बट कोशिश ये रहती है उनकी कि आप किसी ऐसे शब्दों पर, क्योंकि होता क्या है कि जब आप शब्द बोलते हैं ना तो आपके एक्शन भले ही उतने ना चुभे, लेकिन आपका जो शब्द होता है उससे बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। सिविल सर्वेंट को हमेशा बहुत ही पॉइज्ड और आर्ट ऑफ स्माइल और आर्ट ऑफ बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है। मोरलेस आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट, आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप जैसे जब आपको जैसे कोई नहीं आता तो बोर्ड मेंबर्स की सलाह थी कि जैसे कि आपको मना करना हो तो आप सीधे बोल सकते हैं सर माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए मैं ज़रूर पढ़ूँगा। दैट बिकम्स वेरी डेमोक्रेटिक एंड वेरी पोलाइट एट द सेम टाइम। तो अगर ये पोलाइट हो जाएगा तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, बाकी टैरिफ वॉर को देख लीजिएगा एक बार, ये करंट प्रॉस्पेक्ट्स में क्या रेजीम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ लेकर के इंडिया में किस तरीके से यूज़ हो रही है, किन किन जगहों पर यूज़ हो रही है। बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आई पोस्चर, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मतलब मुझे लगता है कि यू आर 99% प्रिपेयर, 1% हेयर एंड देयर इज़ अ मतलब सिचुएशनल है, वो थोड़ा सा आप चेंज करेंगे
और प्लस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख लेंगे एंड दैट इज़ देयर. यू आर ऑलरेडी देयर. व्हेन इज़ योर इंटरव्यू सपोजिटली? अभी मुझे लगता है कि आपका भी तो इंटरव्यू की डेट नहीं आई है. नहीं, वो 21 से स्टार्ट है, अभी कोई आया नहीं. हाँ, मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू रहेगा या सेकेंड हाफ में रहेगा. नेम वाइज होते हैं इंटरव्यू. मुझे लगता है जहाँ तक ऐसा बताया जा रहा है पिछली बार, तो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में आपका इंटरव्यू रहेगा. तो लॉट ऑफ टाइम इज़ देयर. इवन इफ देर इज़ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड सजेस्ट यू टू फोकस अपॉन दैट. अभी जैसे इंटरव्यू होता है तो हम लोग को फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा. बच्चे हमारे जा करके हम लोग से बातचीत करने लग जाएंगे. तो जैसे होता है तो एक बार आप उनसे भी इंटरेक्शन रखिएगा और कोशिश करिएगा कि करंट अफेयर जो चल रहे हैं चर्चा में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर प्राइम मिनिस्टर को सिविलियन ऑनर दिया गया, एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड चिली प्रेसिडेंट विजिटिंग इंडिया, इंडियन रिलेशनशिप विद कंट्रीज़ अब्रॉड, है ना, भारत के में फॉरेन रिलेशनशिप किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, प्लस राजस्थान सेंट्रिक जो मेजर इश्यूज़ हैं. ऑल्दो हमने सब पे ऑलमोस्ट आपसे सवाल पूछे, मोरलेस आपका बहुत ही बैलेंस उत्तर था, बट क्योंकि गुंजाइश रहती है हमेशा कि 10-15 नंबर से आप अगर IPS में वो आपको स्टेट पुलिस सर्विस मिल रही है, तो हम तो चाहेंगे कि आप मेन स्ट्रीम में आए, RAS में आए, ताकि आप वाकई में विधानसभा में या फिर पॉलिसी मेकिंग में अच्छा इनपुट दे पाए. सो दैट इज़ आवर होल आइडिया. ठीक है, बाकी यू आर ऑलरेडी देयर. बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपको भेज रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा करेंगे जब आप प्रॉपर RAS में आएंगे, और तब हमारे पास ज़रूर आएंगे. ठीक है, RAS के नीचे मिलना नहीं चाहिए कुछ भी. हाँ ठीक है. ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ. बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं. यू आर नॉट गिविंग UPSC? नहीं सर, एक बार जॉब के साथ ही ट्राई किया था, फिर वो लगा कि जॉब के साथ नहीं हो पाएगा. कोई नहीं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ. यही फाइनल अटेम्प्ट होगा आपका. बस अच्छे से आप पढ़िएगा. कुछ पूछना है आपको? सर वो फेस वाला एक्सप्रेशन ठीक था क्या, मतलब कुछ फेस ऐसा? ठीक है आपका? दाढ़ी नहीं, वो बना के ऐसा- जाएगी? नहीं, हाँ दाढ़ी तो बना के जाऊंगा पूरी वैसे. अभी बना लीजिएगा. नहीं, उस वो समय- मैं एक इंटरव्यू दिया था, उसमें वीडियो देखा था खुद का, तो थोड़ा फेस गुस्सा टाइप. ये सब आपकी परसेप्शन है. ये वैसा रीजनल जो बायस होता है ना, ये आपने खुद से बना लिया है. इतना सोचना मत करें. इतना सोचना नहीं, मत वो ऐसा करें. लगता नहीं ना कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, लगता नहीं, है. नहीं, आप गुस्से, आप इतने सौम्य भाषी हैं और आप IIT कानपुर से हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको आदर्श भी सिखाया जाता है और आपको शिक्षा का वो भी दिया जाता है. ठीक है, तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बस जो आप हैं आप उसको बदल नहीं सकते एक झटके हाँ, में, वो तो है ना. और थोड़ा सा क्लीन शेव कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना. बाकी यू आर ऑलरेडी देयर. ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर. आपको एक वीडियो मिलेगी ना बाद में, उस वीडियो को आप देखिएगा और कोशिश करिएगा कि उसके अंदर जो हम लोग ने बोले हैं सुझाव, कि एकदम आप एक बार इस पोजीशन पे आकर देखिएगा कि क्या आपने जो मना किया, जो सर के साथ क्वेश्चन का था ना, वो थोड़ा सा पोलाइट कर दीजिएगा, बस उसको छोड़. बाकी और कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं दीपक आपको. थैंक यू सर. थैंक यू. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.